اور سو کالڈ اسٹیٹ نے آج پھر تہران کے جنوبی علاقوں پر حملہ کیا ہے اور کچھ شمالی علاقوں پر بھی میزائل داغے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور اب اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بیروت کے اوپر سو کالڈ اسٹیٹ اسرائیل نے حملہ کیا تھا کہ حتمی مذاکرات جہالت یا حماقت سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، توارے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں صوفیہ صدیقی اور آپ ہماری یہ ویلاگ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم ایران میں جو جاری جنگ ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد جنم لی تھی، اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ اس وقت ایک بہت اہم کنٹروورسی ڈیولپ ہو چکی ہے اور ایک نیا سین کریٹ ہو چکا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جس جنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جنگ ایک دفعہ پھر چڑھے گی، اور اس دفعہ واقعی میں جنگ ایک دفعہ پھر سے چھڑ گئی ہے۔ اس دفعہ ایران کے پیٹرو کیمیکل کے منصوبوں کو اسرائیل کی جانب سے نقصان پہنچایا گیا۔ اس سے قبل ہفتے کی اور اتوار کی رات بیروت کے اوپر سو کالڈ اسٹیٹ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایران نے بیروت پہ ہونے والے حملے کے جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے اوپر میزائل داغے، اور اسرائیل میں وہ میزائل بہت سے اسرائیل کے علاقوں میں ہٹ کی ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم میزائل کا جو کہ کافی مضبوط تصور کیا جاتا ہے، اس نے بہت سے میزائلوں کے اس حملے کو روک دیا ہے۔ تاہم سٹل جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹینڈ آف کی ایک کنڈیشن ہے جو چل رہی ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ 28 اپریل سے ان دونوں ممالک کے درمیان، بلکہ اس میں جو تیسرا فریق شامل ہے امریکہ، اس نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سیز فائر اگلے 2 مہینے تک جاری رہے گی۔ اب سچویشن کچھ نازک حالات کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں ہو کیا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جو کہ بیروت کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے، اور سو کالڈ اسٹیٹ نے آج پھر تہران کے جنوبی علاقوں پر حملہ کیا ہے اور کچھ شمالی علاقوں پر بھی میزائل داغے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایران کے ایک پیٹرو کیمیکل منصوبے کے اوپر حملہ کیا گیا اسرائیلی میزائلوں کی جانب سے، جس کے حوالے سے ایران نے بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم ایسی کوئی بھی جو جعلیت ہے یا کوئی بھی جارحیت ہے، ہم اس کا جواب دیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی کہ IDF کا کہنا ہے کہ ایرانی شہر ماشہر میں ایک پیٹرو کیمیکل منصوبے کو، پروجیکٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا اور تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ IDF کا یہ دعویٰ ہے کہ اس مقام کو، اس پروجیکٹ کی جگہ کو ایران کی جو افواج ہے وہ ہتھیاروں کی تیاری اور خام مال تیار کرنے کے علاوہ برآمد کی جانے والی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہ تمام مواد جو اس پیٹرو کیمیکل سینٹر کے قریب موجود تھا، یہ بنیادی طور پر IDF کے دعوے کے مطابق میزائل ڈیفنس سسٹم بنانے اور بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں استعمال ہو رہا تھا۔ جنوب مغربی ایران میں واقع یہ جگہ، جس کو ماشہر کہا جاتا ہے، اس کے اوپر حملے میں ابھی تک کسی بھی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں موصول ہوئی ہیں۔ ادھر ایران کی اعلیٰ عسکری کمان، جس کو ختم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کہتے ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلح افواج کی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان کر رہی ہیں جو کہ انہوں نے اسرائیل کے لیے لانچ کیے تھے۔ اور یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب یہ لڑائی ایک دفعہ پھر بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو موڈ میں چلی گئی تھی، اور بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ دوبارہ سے جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ آغاز یقیناً ایران اور اسرائیل دونوں کی طرف سے ایک اسٹریٹجک ایفرٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایران کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایران اب یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ ایران کی خاموشی، ایران کا مذاکرات کی ٹیبل پہ موجود ہونا، ایران کا US کے ساتھ بار بار ہر موضوع کے اوپر ڈائیلاگ کرنا اور ہر جگہ پر شامل ہونا، ہر سفارتی ایفرٹ کو یوٹیلائز کرنا، یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ بہت منظم انداز میں
सफारती अंदाज में इस जंग के मसले को हल करना चाहता है। ताहम दुश्मन उनकी इन पॉलिसीज़ को, जो कि ईरान मुसलसल लेके चल रहा है, इसको वो किसी और पैरामीटर में ढूंढ रहा है। वो ये समझ रहा है कि शायद ईरान की दिफाई जो कैपेबिलिटीज़ है वो कमज़ोर हो गई हैं, और अब इज़राइल के ऊपर जो हमला किया गया है ईरान की जानिब से, वो ये साबित कर रहा है कि ऐसा नहीं है। ईरान अब भी अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है और स्ट्रैटेजिक पोजीशन है उसको बरकरार रखे हुए है, और आइंदा चलकर भी वो उसको बरकरार रखने की पोजीशन में रहेगा। 40 दिनों तक जारी रहने वाले इस हमले के बाद ईरान ने यकीनन बहुत से लेसन सीखे हैं, और ईरान ये समझ चुका है कि ईरान अब इस जंग का ख़ात्मा मुकम्मल तौर पर इज़्ज़त के साथ करेगा। वहीं ईरान ने ये भी फ़ैसला कर लिया है कि ईरान अपनी स्ट्रैटेजिक एफ़र्ट्स को और दफ़ाई निज़ाम को किसी भी सूरत अमेरिका और इज़राइल के आगे फ़ेल नहीं होने देगा। ताहम वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि वो अपने दिफाई तनसीबात, ख़ास तौर पर जौहरी जो मंसूबे हैं उनकी हिफाजत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से कुशम जज़ीरे और बंदर अब्बास की जो अहम बंदरगाह है, पोर्ट्स है, इनको निशाना बनाया गया था, और इसके बाद भी ईरान ने वाज़ेह तौर पर जवाब दिया था, जो हमें बहरीन और कुवैत में हमले की शक्ल में नज़र आए थे। अब सिचुएशन ये है कि ईरान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग को, जिसका आगाज़ इतवार के रोज़ हुआ था, इसके ख़ात्मे का उन्होंने ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो इस जंग को रोक रहे हैं। लेकिन इस जंग को रोकना, यानी कि इसराइल के ऊपर जो नए हमले किए जा रहे हैं, उसको कोई भी ईरान की कमज़ोरी ना समझे, और इसको बहाना बनाकर आप ईरान के ऊपर दोबारा हमला या ईरान को जो है आप मैली आंख से नहीं देख सकते। साथ साथ इसी बयान में इन्होंने ये भी वाज़ह किया है कि अगर लेबनान को और जुनूबी लेबनान को निशाना बनाया गया तो ईरान इसको भी डिफेंड करेगा और इसका भी जवाब देगा। ये तमाम चीज़ें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के बहुत करीब है। अब जानते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम मसूद पेशिगान के एक अहम बयान के ऊपर नज़र डालेंगे। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम जारी किया है। उसमें कहा है इन्होंने कि हतमी मुज़ाकरात जहालत या हमाकत से मुतासर हो सकते हैं, और ये जहालत का लफ्ज़ यकीनन उन्होंने इज़राइल के लिए इस्तेमाल किया होगा और हमाकत का लफ्ज़ ईरान के लिए इस्तेमाल किया होगा, इसलिए क्योंकि ईरान जवाब दे रहा है और ईरान को वो अहमक कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी एक असेसमेंट है, दो के यकीनन सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों बातें इज़राइल के हवाले से कह रहे होंगे, इसलिए क्योंकि इज़राइल इस वक्त पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डालने वाला वो बड़ा मुल्क है, जिसकी वजह से इस वक्त दुनिया तीसरी जंगे अजीम के दहाने पर पहुंच चुकी है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3। और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है तो यकीनन पूरे दुनिया में जो प्रॉस्पेरिटीज़ और आगे जाने के लिए जो ख्वाब देखे जा रहे हैं, विजन 3035 के ऊपर काम किया जा रहा है, मिलेनियम्स गोल डिस्कस हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं दूसरे किनारे पर रह जाएंगी। भूख, अफलास, गुर्बत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की आपने रिपोर्ट देखी होगी, ये तमाम चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि अगर हम जंग की जानिब जाते हैं तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा और पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को होगा, जो कि यकीनन इंसानियत का एक बड़ा नुकसान होगा। नज़र डालते हैं आगे चल कर सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमन के क़याम के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम जहालत और हमाकत से ये मुतासर हो सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नाकाबंदी आबनाए हुर्मुज़ की बरकरार है और ये पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी जब तक एक हतमी मुआहदा तय नहीं पा जाता। तो सोशल पे उन्होंने जो लफ्ज़ लिखे हैं आप उनको समझने की कोशिश करें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बोथ साइड, इज़राइल एंड ईरान, पहले उन्होंने इज़राइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आर लुकिंग टू इमीडिएट सीज़ फायर। उनको इन्होंने तरतीब से दावत दी है कि वो सीज़ फायर कर लें। फाइनल नेगोशिएशन ऑन पीस आर प्रोसेसिंग, यानी कि हतमी नताइज की तरफ पीस डायलॉग जा रहे हैं, सब्जेक्ट टू इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी गेटिंग इन इट्स वे, यानी कि हमाकत और अगर किसी भी किस्म की जहालत दिखाई जाती है तो इसका नुकसान होगा। द ब्लॉकेड विल रिमेन in place and with full efforts and
affect forces until the final deal is reached. यानी कि जब तक हतमी मुआहदा नहीं हो जाता आबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है. थिंग्स शुड मूव क्विकली, ये तमाम चीज़ें जल्दी होनी चाहिए. थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रम्प. ये है उनका ट्रुथ सोशल पर पैगाम, और इस पैगाम में वो तमाम बातें मौजूद हैं जो हमने आपको पहले बताई थी. यानी कि सदर डोनाल्ड ट्रम्प वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि मुज़ाकरात जारी रखने हैं और जंग जब तक ख़त्म नहीं होती आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेट नहीं खुलेगा. ये ऐलान भी है, पैगामात भी हैं और दोनों ममालिक के लिए मैसेज भी है. अब ईरान की जानिब से जारी किए गए पैगामात की तरफ अगर बढ़ें तो ईरान की वज़ारत दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका तबादला अब भी हो रहा है और बातों का ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है. बकाई ने ये वाज़ेह नहीं किया है कि आया पैगामात का तबादला गुज़िश्ता रोज़ से जारी है या नहीं, ताहम उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है. और एपरेंटली ये जो लाइन है मैंने BBC से कोट की है. ताहम वाज़ेह तौर पे आपको बताते चलूँ कि अमेरिका और ईरान मुकम्मल तौर पर राब्ते में है और पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ तेहरान का दौरा भी किया था. इस दौरे का भी बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली जो कंट्रीब्यूशन है और जो सफारती ताल्लुकात हैं इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको जल्द अज जल्द आगे की तरफ लेकर चला जा सके. 1 जून से ईरानी पासदारान इनकलाब से करीब समझे जाने वाले ईरानी ज़राए अबलाग में बाज़ इतलात ऐसी सामने आ रही हैं कि लबनान में इजरायली हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाजन ईरान और अमेरिका ने जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो रोक दिया है. ताहम आपको ये बात याद होगी कि ईरान अपने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले दिन से ये कह रहा है कि अगर लबनान के ऊपर जंगबंदी नहीं जारी की गई, ख़त्म की गई, तो ईरान के ऊपर होने वाली जंगबंदी को भी फ़ाल नहीं समझा जाएगा और ईरान भी जवाबी कार्रवाइयाँ करने का हक़ रखता है. उधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस जनूबी इलाके में लबनान के हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने की दावा कर रही है. इससे कबल हफ्ते के रोज़ क्या हुआ था जिसके बैकग्राउंड पे इज़राइल और ईरान की वॉर का दोबारा से आगाज़ हुआ कुछ यूँ था कि इज़राइल ने बैरूत जो कि लबनान का दारुल हुकूमत है वहाँ पर एक हमला किया था. हिज़्बुल्लाह के अहम लीडरों को निशाना बनाने का दावा किया था और इसके नतीजे में दोबारा से ये जंग हमें अगले 2 दिनों तक जारी रहती हुई नज़र आ रही है. बरतानवी जो वज़ीर आज़म हैं और पार्लियामेंट के सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों ममालिक यानी कि इज़राइल और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करें. इसके अलावा चीन ने गहरी तशवीश का इज़हार किया है. ईरान और इज़राइल के दरमियान दोबारा से जो जंगें शुरू हुई हैं, दोबारा से एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया है, उसके नतीजे में चीनी तर्जुमान ने कहा है कि बीजिंग को उम्मीद है कि तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन जंग बंदी से मुतालिक अपने वादों को पूरा करेंगे, मुज़ाकरात को बरकरार रखेंगे, सियासी और सफारती ज़राए से इख्तलाफात को हल करने की पोजीशन को जारी रखेंगे, जिससे चीन बकौल एक मुकम्मल और पायदार जंग बंदी की राह हमवार होगी. यानी कि चीन ये कह रहा है अगर आप तहम्मुल से मुज़ाकरात को जारी रखते हैं तो इसके नतीजे में एक अच्छी पुरअमन ज़्यादा देर पा कायम रहने वाली सिचुएशन क्रिएट होगी. 8 जून तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30-36 पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उसमें इन्होंने कहा इज़राइल एंड ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये एक सदारती हुक्म है, उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि इस जंग को फ़ौरन से रोक दिया जाए. यहाँ मेरा आपसे ये सवाल है जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपके ख़्याल में ईरान को इज़राइल के ऊपर इस तरह के हमले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करने चाहिए? पीर की सुबह का आगाज़ तेहरान में बहुत से धमाकों से हुआ. पीर का दिन इस लिहाज से भी अहम है कि इस दिन फ़िलीपींस में 7:40 के करीब एक बहुत शदीद ज़लज़ला आया. पाकिस्तान की PMD ने कहा कि 8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला है. ताहम USGS यानी कि यूनाइटेड स्टेशन का जो जोग्राफिक सेंटर है वो ये बता रहा है कि ये रिकॉर्ड किया जाने वाला
जो ज़लज़ला है वो 7.8 रेक्टर स्केल का था, 10 किलोमीटर इसकी डेप्थ थी, जिसके नतीजे में फ़िलीपींस के बहुत से इलाकों में शदीद नुकसान हुआ है, बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, बहुत से लोग मुतासर हुए हैं इस ज़लज़ले के नतीजे में, और हुकूमत ने इमीडिएटली अपनी जो हेल्पलाइन सर्विसेज हैं वो एक्टिवेट कर दी हैं। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, मलबों के नीचे से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। जंगों के साथ साथ जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक एनवायरनमेंट हमारे साथ क्रिएट हो रहा है, वहीं जो एल नीनो की वजह से पूरी दुनिया में एक खुश्की और गर्म मौसम का आगाज़ होने वाला है, और जिन जगहों पे फ्लड्स आएंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंसानों पर होगा, और हम सबको मिलकर ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए, इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया में अल्लाह ताला के बनाए हुए इस निज़ाम को कायम रखने के लिए हर वो एफ़र्ट करने की ज़रूरत है जिससे हम इस दुनिया में खुशहाली ला सकें। तवारे पाकिस्तान के आज की वीलॉग से इतना ही। मुझे अपनी मेज़बान सोफिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मुसद्दिक़ा मालूमात शेयर करना चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।